So in this exercise, at the end of the exercise, you will be able to know the file and finishing matching parts within the accuracy of plus or minus 0.02 mm using outside micrometer. And next is the file and finishing matching parts having angular surface within the accuracy of plus or minus 10 degree by using of vernier bevel protector. So in this exercise, in what is the requirement of tools will be shown in the figure. So the first one is outside micrometer. So outside micrometer कौन ना यह होची गोटे precision instrument which is accuracy is 0.01 mm. It is used for checking the thickness or outside diameter को measure करिया पई हमें outside micrometer को use करछे. Next is vernier bevel protector. Vernier bevel protector, it is a angular measuring instrument. Its accuracy होची कहते ना for 5 minutes. ये कौन करे ना खाली एंगल को मेजरमेंट करे और एंगल मेजर करिया पई आर विभिन्न डिस्क डायल एंड ब्लेड मध्य अछि. The next is file. This is known as flat file. कौन सी जगह जदि हमर हेवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल अछि जदि कौन सी मटेरियल को हम रैपिडली रिडक्शन करिया को चाहूचे ताले हमें सेठी फ्लैट फाइल को यूज करिया. This is vernier caliper. Its accuracy is 0.02 mm. It will be checked in 3 types. What? Inside dia, by and outside dia, and depth. It will be measured 3 types. So this is drill bit. Drill bit, it is max holes. So required size ro drill हमें नोबा जोटा कि अछि हमर 22 mm and 23 mm and 3 mm. 3 mm used for हमर slot hole रो जोटा ये अछि relief group को हम तैयारी करिया पई हम कोन करछ ना drill bit को हमें यूज करछ. That is square file. Square file is used for filing the any square slot or cube edge को हम जदि filing करिबार थिबो ताले हम square file को ही यूज करिबा. This is a triangular file. Triangular file हमें कोड यूज करू ना जोटी एंगल टा 60 डिग्री रु एभव थिबो दैट मींस एक्यूट एंगल माने 60 डिग्री रु अधिक थिबो से एंगल जदी थिबो ताले सेठी हमें कोन करिया ना ट्रायंगुलर फाइल को हमें यूज करिया. दैट इज स्मूथ फाइल. स्मूथ फाइल इज यूज्ड फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ रिडक्शन ऑफ मटेरियल. ता माने कोनोसी मटेरियल रु हम जदी अल्प परिमाण किछि मटेरियल को रिड्यूस करिवार अछि ताले स्मूथ फाइल को यूज करिया विथ एक्यूरेसी मध्य मैनेज करिया पई हम मध्य स्मूथ फाइल को यूज करू. सो नेक्स्ट इज प्रोसीजर हाउ टू मेक ए हेक्सागोनल स्लाइड फिटिंग. सो दिस इज द video hexagonal slide fitting. Let us take the plate of dimension 50 into 62 into 9 mm. Clamp the plate in bench vise and file the rough surface of plate using flat file to 48 into 60 into 9 mm. Check the squareness of plate using tri-square. Mark the center line on the plate using steel rule and scriber on the plate. Take 25 mm measurement on steel rule by divider for drawing a circle on the plate. Draw the circle of 25 mm radius on the marked center line in the plate. Mark 6 arcs on the drawn circle in the plate.
Join the arcs to form hexagon shape in the plate using steel rule and scriber. Draw the circle of 23 mm for making hexagon cut in the plate. Punch on the marked hexagon line using center punch and hammer. Clamp the plate in the drilling machine to make relief holes. Using 3 mm drill bit, make 6 relief holes on the edges of marked hexagon in the plate. Using center drill bit, make center drill on the plate. Apply oil on the center of marked plate and to make 6 mm drill hole in the plate by using 6 mm drill bit. Make 14 mm drill hole on the plate using a 14 mm drill bit in the drilling machine. Make a 23 mm drill hole on the plate using 23 mm drill bit in the drilling machine. Clamp the plate in bench vise and file the plate by using flat file on side of the circle to marked line of hexagon in the plate. Turn the plate in the bench vise. Again, file other sides to make hexagon shape on the plate by filing. Take the dimension of a rod as dia 27 mm and length as 62 mm. Clamp the cylindrical rod in bench vise and file it by flat file to 26 into 60 mm. Mark the center line using steel rule and scriber on the rod. Take 25 mm measurement on steel rule by compass. Draw the circle of 25 mm radius on the marked center line in the rod. Mark 6 arcs and join the arcs to form hexagon shape in the rod using divider, steel rule and scriber. Punch on the marked hexagon line in the cylindrical rod. File the rod to marked dimension of hexagon shape by using flat file. Turn the rod and file the other sides of the rod. Finally, match the part 1 and the part 2. So this is the video. After that will be in this exercise we will know the skill information. What is the skill output in this exercise? So this is first skill information. So square file. So square files are machinist file that can be used slot or QS. मु पूर्व मध्य कहितली जे फाइल टा कोन पय हमें यूज करछे ना स्लॉट किबा को QA को यदि हम फाइलिंग करियार थिबो तल सेटी हमें स्क्वायर फाइल को यूज करबा. कारण कोन दे आर आल्सो यूज्ड for roughing removing material quickly when turning round the drill hole into square slot. यदि कोड से जगह हम रफ वर्क करिया थिबो मध्य सेटी हम कोन करिबा स्क्वायर फाइल को यूज कर परिबा. हेवी रिडक्शन हम करिया चाहिए हम करि परिबा. नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर फाइल. ट्रायंगुलर फाइल टा कोन होची ना एटा हम कोन होचे मु आपन कहउतली कि जे जो एंगल टा 60 डिग्री रु अबव थिबो सो सेटा को हम कहउचे ट्रायंगुलर फाइल एबव को हम फाइलिंग करिया पय हम कोन कहउचे ट्रायंगुलर फाइल यूज करछे. ट्रायंगुलर फाइल हैव 3 टैपरिंग साइड. दैट मीन्स कौन कहूँ ना ट्रायंगुलर फाइल टा देखा कि परी ना तार जो साइड गुड़िक अच्छी तीनटा भाग में व्यक्त कराए तो छोटा टैपर समस्त को टैपर होगी अच्छा. दे आर यूज्ड टू फाइल द सरफेस एक्यूट इंटरनल angles and small triangular files also used to sharpen the hands. तो कौन कहूँ जोटी आमर जो ट्रायंगुलर फाइल अच्छी छोट जोटी थाए सेठी कौन करा जाए आमर ना आमर जो करत अच्छी करत को कौन करा जाए शार्पेनिंग करने ता टीथ को से लगे आम कौन करछे यूज करछे
triangular file. Then is a knife file is a type of triangular file that looks like a flat file. तो knife जो फाइल अच्छे सी मध्य देखिया का पर ना फ्लैट फाइल भली मध्य देखिबा को. So this is smooth file. A file having teeth so fine as to make almost smooth surface. जदि आमर कौन से smooth surface को आम फाइलिंग करिवार अछि तान फिनिशिंग पर्पज रे जदि आम यूज करछो ताले सेठी आम smooth file ही यूज करिवा. तो नेक्स्ट इज मेकिंग यूजिंग वर्नियर हाइट गेज. माने ए एक्सरसाइज रे आम वर्नियर हाइट गेज को कौन पाई मुख्य प्राधान्य दबा. Now one of the main function of the vernier height gauge is to scribe line on a workpiece to know heights. ता माने कोन कहूची ना हमें जदी कोनोसी vernier height gauge रे कोनोसी dimensional को मापीबा ताकू ताला हमें कहूचे height मापुची. Then the height gauge scriber must be checked against the reference surface to confirm whether the zero of the vernier coincide with the zero of the beam scale when the scriber contact the reference surface. ता माने कोन कहूची जेतेबेले बीम स्केल रो 0 हेतिबो एवं मेन स्केल 0 हेतिबो सेतेबेले स्क्राइबर रो पॉइंटटा सरफेस रो प्लेट को छूंथिबो. ता माने समस्त 0 कांटेक्ट रे अछंती. So next है keep the vernier height gauge base firmly on the surface plate. ता माने आम जो surface plate अच्छी तापर तले हमर vernier height gauge टाको रखुचे तो properly place करथिया दरकार. And hold the scriber to an angle to accuracy of pull the corner of the scriber across the work. ता माने जदे हमें एंगल मेजरमेंट करूचे किमा मार्किंग करूचे सेठी प्रॉपर्ली होल्ड करथिया दरकार वर्कपीस को. नले वर्कपीस को जदि हम होल्ड न करि पारे से कोन हबो डिस्टरबेंस क्रिएट करिवो जदरा कि हमरो मार्किंग ठीक से हेई परिवो नाही. So this is the angle plate and this is the surface plate and it is the vernier height gauge. It is the workpiece, the scriber point to indicate the dimension, and it is angle plate and it is surface plate. This is the base of the vernier height gauge. So next is कौन होची ना do not allow the base to lift. ता माने कौन कहूची ना तार बेस टा को कदापि लिफ्ट करियो ना उठे कि न बने. आमे कौन मूवमेंट करिया कौन दरकार ना सरफेस प्लेट ऊपर ही मूवमेंट करिया ताकू टेकी नहीं मूवमेंट करिया दरकार नहीं. दरकार कले कौन हबो ना डायमेंशन एरर आसीबो. And do not apply too much pressure to peel off metal from the workpiece. ता माने कौन होची अधिक प्रेशर क्रिएट करा जीवनी जद्वारा कि कौन मटेरियल रे कौन बा जदे स्क्रैचिंग जदी थाए ताले से कौन अफेक्ट करिवो काकू ना तमरो वर्नियर हाइट गेज रो स्क्राइबर ऊपर. Then is this will be avoid damage to the scriber point. ता माने मु कोन कहली जे जदी हमें कोन करबा जदी जोर रे घसी के नबा ताले सेटा कोन हबो ना डैमेज करिवो काकू ना स्क्राइबर रो पॉइंट को. Center points can be located by scribing lines at right angle. ता माने सेंटर पॉइंट सबले कोन होतो ना 90 डिग्री पोजीशन रे रहतिया दरकार. 90 डिग्री न रहिले सेटा कोन हबो डायमेंशनल प्रॉपर आसीबो नाही. Scribe fast all line dimension in one direction. Suppose गोटे मटेरियल अच्छी तो तार लेंथ अच्छी ब्रेड्थ अच्छी तो यदि आम लेंथ वाइज डायमेंशनली मेजरमेंट करवा ताले मार्किंग कर करके चलवा. किंतु जदि आम गोटे लेंथ गोटे ब्रेड्थ करथिया ताले डायमेंशनली एरर आसीबो. तो वन वे कले हमको प्रॉपर विजिबल हेबो मध्य. एंड चेक द फ्री मूवमेंट ऑफ द स्लाइडिंग. जब मूवमेंट करछे फ्रीली मूव होबा दरकार जद्वारा कि कौन आउ कौन सी माने मटेरियल को इफेक्ट करबनी कि स्क्राइबर रो किछि इफेक्ट हो नहीं. मेक श्योर दैट द वर्कपीस हैज नो बोर हैज बीन प्रॉपर्ली क्लीन. ता माने कोन हेता दरकार जो मटेरियल टा अछि से मटेरियल टा तमर कोन हेता ना प्रॉपर्ली क्लीन हेता दरकार. सेतरे कोनोसी बोर नथिबो नले बोर नथिले तमर प्रॉब्लम टा कोन हबो मु कहिछि कि ना स्क्राइबर टा खराब हे जिवो तो मार्किंग टा ठीक से हेई परिबनी. तो वर्कपीस नेसेसरी इज क्लैंपिंग टू एन एंगल प्लेट इफ इट इज थिन. जदि हमरो मटेरियल टा पतला अछि तो सेठी कोन करिया दरकार ना एंगल प्लेट रे ता कोन करिया होल्ड करके हमें मार्किंग करिया. द एप्लीकेशन ऑफ द मार्किंग मीडिया शुड बी लाइट थिन एंड इवन.
ता आम कौन कर जो मार्किंग मीडिया यूज कर मनकर पर्सियन ब्लू हो कि तुम चक भी आम यूज कर तो सेटा कौन मान लाइटली हवा दरकार लाइटली हेल्ले कौन हम ना ये भिजिबल हम कि जदि आम डार्क करदे ताल कौन हम ना जो आम मार्किंग करवा से कौन हो अधिक मोटा होगी आसो मोटा होगी आसिले कौन हम ना जो डायमेंशनल आम आक्यूरेसी मेजरमेंट करार अच्छे ना तेणुक जब आम जब मोटा करदे ताल तो फिटिंग हो पारनी सो दिस इज द object the dimensionally in one direction it will be base point and next is place the work at 90 degree to scribe the line dimension to intersect to one another ता माने कोन कहूची ना जदी हमें लेंथ वाइज करछे ताकू पुणी 90 डिग्री को मूवमेंट करके ब्रेड्थ वाइज हमें करबा वर्तमान किंतु पूर्व सेटा ब्रेड्थ वाइज हेतला एटा वर्तमान लेंथ वाइज हेची सो नेक्स्ट इज असेसमेंट सो कौन कहूँ ना जिते आम ये करुचे जो कौन एक्सरसाइज आम एनालिसिस करुचे से समय किसी ना किसी क्वेश्चन अराइज होचे कौन कौन एक्चुअली आधार आसूची सो व्हाइल मेजरिंग विथ वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर व्हिच पार्ट इज यूज्ड नॉर्मली रेफरेंस सरफेस जितेबाला वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर को आम यूज करछे ताल रेफरेंस पॉइंट क्या नौचे ना ऑप्शंस आर देयर स्टॉक डायल ब्लेड डिस्क तो ऑप्शन आंसर है स्टॉक नेक्स्ट इज ए फ्लांज माइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर डैश जो आम फ्लांज माइक्रोमीटर अच्छे सी कौन करुच्ची मैं कौन मेजर करुच्ची ना आउटसाइड डायमीटर ऑफ ए गियर रो आउटसाइड डायमीटर मेजरमेंट करुच्ची ना कोडाल थिकनेस ऑफ गियर टीथ रो आमर थिकनेस मेजरमेंट करुच्ची ना एडेंडम ऑफ द गियर रो एडेंडम चेक करुच्ची ना नन ऑफ ना एथन मधन कोनोसी नुह किंतु आंसर्स आर द कोडाल थिकनेस ऑफ अ गियर टीथ Next is if the principle of a universal bevel protector is similar that of dash तो मैंने कौन कहूँ यूनिवर्सल बिवेल प्रोटेक्टर जो अच्छी सेटा क्या भली देखा माने सिमिलार तो हूँ आंसर हूँ वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 नंबर द साइज ऑफ वर्नियर हाइट गेज इज स्पेसिफाइड बाय जो आम वर्नियर हाइट गेज अच्छे केमी स्पेसिफिकेशन है तो विड्थ ऑफ द बीम हाइट ऑफ द बीम वेट ऑफ द हाइट गेज एंड साइज ऑफ द स्क्राइबर तो आंसर इज हाइट ऑफ द बीम नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ ईच वर्नियर स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर जो वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर अच्छी तादेह वर्नियर स्केल डिवीजन टा प्रत्येक भाग में केते अच्छी दैट इज 2 डिग्री नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन while laying out the vernier height gauge must be used on the dash तो मैंने जो वर्नियर हाइट गेज को यूज करुचे तो कौन टा को यूज करिया दरकार मुख्यतः ना सरफेस प्लेट ना मशीन बेड ना वी ब्लॉक ना एनी फ्लैट सरफेस तो फ्लैट सरफेस रे आमे करि परिबा नाही कारण एडी माने प्रॉब्लम क्रिएट करिवो जोटा कि एब्राजन थबो तो सेति लागि आमे कहू ना सरफेस प्लेट जोटा कि हाईली एक्यूरेसी तो आंसर इज सरफेस प्लेट The 7th number question is the list count of a universal bevel protector. तो ये यूनिट जो पचार लिस्ट काउंट पचार बिवेल प्रोटेक्टर रो अच्छी 0.5 मिनिट्स 5 इंच 5 मिनिट्स एंड 5 डिग्री द आंसर हूँ 5 मिनिट्स सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 इज रैचेट स्टफ इन द माइक्रोमीटर हेल्प्स टू डैश तो रैचेट स्टफटा आमर माइक्रोमीटर कौन कार्य करुच्ची ना कंट्रोल द प्रेशर लॉक द स्पेंडल एडजस्ट द एरर जीरो एरर एंड होल्ड द वर्कपीस तो आंसर इज कंट्रोल द प्रेशर नेक्स्ट इज माइक्रोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश जो माइक्रोमीटर अच्छी आमर कौन प्रिंसिपल काम करुच्ची ना नॉट एंड वोल्ट so this one is the exercise and after that कौन हो ना जेकोसी आम एक्सरसाइज करुचे किसी ना किसी तार सेफ्टी प्रिकॉशन थाए बर्तमान मुझे आपको किसी सेफ्टी प्रिकॉशन देखी जोटा कि सो दिस इज सेफ्टी प्रिकॉशन
Do not remove the chips with your bare hands during drilling. Always use brush. ता माने कौन कहूचे जते बळे ड्रिलिंग करूचे जदि चिप्स रिमूवल जते बळे होउची ताकू आमे कतणे खाली हाथ रे बाहर करिया नै सब बळे कोन करिया ब्रश यूज करिया दरकार. Do not try to change the belt while using the drilling machine is running. जते ड्रिलिंग मशीन ता रनिंग कंडीशन ने अछि तार जो बेल्ट अछि जो V बेल्ट लागिची ताकू आमे काढिबा नाही. And never mix the cutting tools with any other measuring tool. जदि आम पाखे किसी कटिंग टूल अच्छी मेजरिंग टूल अच्छी ताको गोटे जगह रखिया ना कारण जदि रखा ताले कौन हम ना मेजरिंग टूल रे कौन हम अफेक्ट पड़ो जोटा कि मेजर आउ ठीक से करें ना. अवॉइड यूजिंग ए लूजली हैंडल विथ फाइल एंड हैमर. आम कौन कहते जब आम फाइल कि हैमर यूज करुचे ताले सेठी कौन हो दरकार तार हैंडलटा लूज नथिबो जदि लूज रहिला ताले कम एक्सीडेंट मे बी हैपन. सो this was a one-way communication. If any queries to call me or WhatsApp me, my WhatsApp number is 8658331605. Thank you all. स्कूल छोड़े हुए 2 साल हो गए यार, अभी तक कॉलेज का नामो निशान नहीं है. कम से कम फेल हो जाते तो स्कूल में ही रहते. सही बोल रहा है यार तू. यहाँ तो रोज़ रोज़ बाप के डंडे खाने पड़ते हैं. एक तरफ बाप और एक तरफ किस्मत, दोनों तरफ से तो डंडे पड़ रहे. जिंदगी तो ख़त्म सी लग रही है. जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन ये मूंगफली ज़रूर ख़त्म हो गई है. ये ले लास्ट है. देख देख तू भिड़ जा तू लड़ जा तू अड़ जा तू कर जा. झूम झूम के घुमा तेरा हुनर का ये डंडा. नहीं है तो पकड़ नहीं है घुमाकड़. अगर मगर मकर तू तो टक्कर का है बंदा. तू गिरेगा तू फंसेगा तू रुकेगा चल. बेटा कोशिश करने वालों की ना हार नहीं होती. तू भिड़ जा तू लड़ जा तू अड़ जा तू कर जा. झूम झूम के घुमा तेरा हुनर का ये डंडा. देखो लोकंकर काम हैला कथा हेबे कला कौशल नुआ सृष्टिर से मजा नेबे. तमे हेलो गोटे अतांक बड़ी हजार हेबे. सीए प्रजा किंतु तमे सब रजा हबो. जीवन तो गोटे स्वप्न वास्तव तार जे स्वप्न रु उठे. सब किछि संभव विथ काम आउ कौशल. जीतिगिरी मिले बहु बड़ी बड़ी बहु बड़. तू करी जा तू लड़ी जा तू बड़ धन. तू हेलो स्किल देन ओडिसा. तू करी जा तू लड़ी जा तू बड़ी जा धन. तू हेलो स्किल देन ओडिसा. स्किल देन ओडिसा. स्किल देन ओडिसा. yeah स्किल देन ओडिसा. धन तू हेलो स्किल देन ओडिसा. दुनिया वाला बुरा तू मिला तो ये खोलेगी. तेरा राजू पे ये तोलेगी. हर मौके पे ये टोकेगी. करना फिकर बस अब आगे तो बढ़. किस्मत को कोस मत साथ है हुनर. जो करना है कर अब भुला दे तू डर. आसमां को छू ले फैला के तू पर. सुनो सुनो देखो कथा हबाकू अनेक लोक आज दुनिया रे किंतु लाभ कौन तुमको तांको कथा सुनी बारे. बुझो आई कथा की तो चढ़ई दौड़ी चले जाकी पचारे मोना कौन ओडिसा रे. तमे हेलो ओडिसा रे कौशल भूली बनी. तमे हेलो ओडिसा रे कौशल बयस रे कम किंतु हब तमे बहु बड़. तमे सब कर ओडिसा को गौरव. तू करी जा तू लड़ी जा तू बड़ धन. तू हेलो स्किल देन ओडिसा. तू करी जा तू लड़ी जा तू बड़ी जा धन. तू हेलो स्किल देन ओडिसा. स्किल देन ओडिसा. स्किल देन ओडिसा. yeah स्किल देन ओडिसा. धन तू हेलो स्किल देन ओडिसा. झूम झूम के घुमा तेरा हुनर का ये डंडा. हुनर का ये डंडा. झूम झूम के घुमा तेरा हुनर का ये डंडा. स्किल देन ओडिसा. तू करी जा तू लड़ी जा तू बड़ धन. तू हेलो स्किल देन ओडिसा. तू करी जा तू लड़ी जा तू बड़ी जा धन. तू हेलो स्किल देन ओडिसा. स्किल देन